गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ क्लास 10th। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थ्योरी देखी थी। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 6। आज हम उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इस सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस में नेट रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो थियोरेटिकली हमने देखा था। नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिस बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ three resistors of 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm are connected in series with a 12 volt power supply. Okay, so this is 5 ohm resistor, this is 10 ohm resistor and this is 15 ohm resistor. What question says that they are connected in series with 12 volt power supply. So this is 12 volt power supply. Calculate their combined resistance. First point, their combined resistance. So as we know, in series, net resistance is calculated as R1 plus R2 plus R3. So here R1 is 5 ohm, R2 is 10 ohm and R3 is 15 ohm. Why this is in series? Because as the I current flows through this circuit, then you can see that same current is flowing through all of these resistors. If is it so that same current is flowing throughout each resistor, then these resistors are said to be in series. So these resistors are in series, that's why we simply add them as per the theory. So 5 plus 10 15, 15 plus 15 30, so that the net resistance will be 13 ohm. So this is the answer of the first question. Calculate their combined resistance. Now second question is the also calculate the current that flows in the electric circuit. So now we have to calculate the current. As we know from the Ohm's law that V equals to IR. The total power supplied or the total potential supplied in this circuit is 12 volts. So voltage V equals to 12. We have to find the current and the net resistance throughout this circuit is R net, that is 30 ohm. So put the value here and you will get I equals to 12 by 30 ampere. Whatever will be the answer you can calculate by yourself. So this is I here. Now the third part is we have to calculate the potential difference across each resistor. That means what question says that determine the potential drop across this resistor, across this resistor and across this resistor. Let's say this is V1 voltage or this is V2 potential drop and this is V3 potential drop. So to calculate this potential drop V1 across this resistor 5 ohm, we can apply the Ohm's law, so that the third point will be potential drop across 5 ohm resistor is V1. V1 we have to calculate. So from the Ohm's law, as per the Ohm's law, V equals to IR, so that V1 will be I into R1 and I is what? I we calculate here 12 upon 30. So 12 upon 30 into R1. R1 is what? 5 ohm. We can write it as R1, R2 and R3. So V1 will be I into the resistance over here R1. So V1 will be R1 5. Now you can calculate it as that will be 2. So this is the 2 volt potential drop. Similarly, you can calculate V2 by using this current and this resistor. So V2 will be as V equals to IR. So V2 will be I into R2. I is same that I that we calculated here. I is what? 12 upon 30. So I is 12 upon 30. R2 is 10 ohm. So this will become 12 upon 3, 6 volt. And similarly, V3 equals to I into R3. I is from here 12 upon 30.
12 upon 30 into R3. R3 is 15. So it will become 6 volt. So you can see here that potential drop across this 5 ohm is 2 volt. Potential drop across this R2 is 6 volt. At potential drop across this 15 ohm is 6 volt. So 6 plus 6 12, 12 plus 6 plus 6 12 and 12 plus 2 14. So across this is 14, बट हमने अब कितना अप्लाई किया था 12. तो जब 12 वोल्ट हमने सर्किट में अप्लाई किया है तो नेट 14 कैसे आ सकता है? दैट मीन्स हमने कुछ ना कुछ गलती की है. तो लेट्स चेक V2 इक्वल्स टू IR2 12 अपॉन 30, क्योंकि करंट कितना फ्लो हो रहा था यहाँ पे 12 अपॉन 30 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10. तो 10 डिवाइडेड बाई 30 इज 1/3. 1/12/3 इज 4, नॉट 4, दिस इज नॉट 6, दिस इज 4. Right, so this is 4 volt. Now you can see from here, as you know, 12 by 3 is 4 volt only. 12 divided by 3 is nothing but 4. मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था गलती से. This is not 6, this is 4. Right, so now you can calculate 6 plus 4 10, 10 plus 2 12. Now you get correct answer, क्योंकि अगर हमने 12 वोल्ट टोटल पोटेंशियल ड्रॉप दिया है अक्रॉस दिस, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहना चाहिए, जबकि पहले ज़्यादा आ रहा था. इससे हम समझ में आया कि हमने कुछ ना कुछ गलती की है, बिकॉज जितना टोटल पोटेंशियल आपने प्रोवाइड किया है उससे ज़्यादा तो कभी वो हो ही नहीं सकता पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी. दैट्स वाई ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं कि मिस्टेक कहाँ हुई है. राइट, तो नाउ दिस इज 6 plus 4 10, 10 plus 2 12. नाउ एवरीथिंग इज करेक्ट. So that's how you can calculate the potential drop across each resistor and the amount of current flowing through the circuit and the net resistance throughout the circuit. So this is your question number 1. Next question is, we have to calculate the reading of the ammeter and voltmeter. As we know, ammeter, what ammeter does? Ammeter calculate the current flowing. Ammeter reads the amount of current flowing throughout the circuit, and voltmeter reads the potential drop across the terminals. Right, so to calculate the readings of ammeter and voltmeter, first of all let's calculate the net resistance. So you can see, as I current is flowing like this, I and I. Now you can see that this is the voltmeter and this is the your resistor. तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे दो पाथ हैं तो यहाँ पे दो करंट फ्लो होनी चाहिए I1 एंड I2, बट ऐसा नहीं होगा, बिकॉज V1 इज द हाई रेजिस्टेंस डिवाइस. हाई रेजिस्टेंस डिवाइस नेवर अलाउ द फ्लो ऑफ करंट. मैंने आपको जब वोल्ट मीटर और अमीटर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर जो होती है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, और जिसके पास जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो करंट का फ्लो अलाउ नहीं करेगा. और जबकि अमीटर जो होता है वो कैसी होती है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस. लो रेजिस्टेंस डिवाइस मीन्स इट easily allow the flow of current. So since voltage या voltmeter is the high potential high resistance device, so it will not allow the flow of current. तो यहाँ पे I1 नहीं जाएगा, पूरा का पूरा करंट I इस रजिस्टर से पास हो जाएगा. ठीक है, तो ये करंट I स्प्लिट ना होके कम्प्लीटली 2 एम्पियर में फ्लो होगा, और यहाँ पे भी हमको I मिलेगा, यहाँ पे भी हमको I मिलेगा. नाउ सिंस अमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, तो ये लो रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट को अलाउ करेगा, और करंट विल बी फ्लो लाइक दिस थ्रू आउट द सर्किट. राइट, okay. Now so you can see that this resistor and this resistor are in series, because I current is flowing from 4 ohm to 2 ohm. So as the current is flowing in series, that's why this and this resistors are in series. So net resistance will be, R net will be 4 plus 2, that is 6 ohm. Right, and how much voltage is given? This is 3 volt. So as from the Ohm's law, as per the Ohm's law, V equals to IR. So I will be V upon R. So V is what? 3, R is what? 6. So this is nothing but 0.5 ampere. So the value of the current is 0.5 ampere throughout the circuit. So this ammeter reads this current. So the reading, hence the reading of ammeter will be 0.5 ampere
ये तो हो गया आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, टू कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर रीडिंग किस टर्मिनल के बीच में करेगा, इस टर्मिनल के बीच में, यानी कि हमको इस 2 वोल्ट इस 2 ओम के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है। सिंस द करंट इज 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर यहाँ पे भी फ्लो करेगा और यहाँ पे भी फ्लो करेगा। अब वापस हम इसमें ओम्स लॉ जब लगाएंगे तो V इक्वल्स टू आई आर, और I की वैल्यू कितनी है इसके अक्रॉस, I 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो I विल बी 0.5 एम्पियर इंटू रेजिस्टर कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, सो दिस विल बी 2 ओम, तो V इज इक्वल्स टू 0.5 into 2, that is 1 by 2 into 2, that is 1 volt only. So that the voltage or the potential drop across this 2 ohm is 1 volt, and this 1 volt is read by this voltmeter. So the voltmeter reading will be, hence the voltmeter reading will be 1 volt, right? So this is the answer. That's how you calculate the reading of ammeter and voltmeter. Understood? Now moving to the next question. Next question is, wait. Next question is, we have to calculate equivalent resistance of the circuit. So this is the circuit given, and we have to calculate the equivalent resistance of the circuit. So this is the plus terminal of the battery. From the plus terminal of the battery, current start flowing like this, I. Now you can see here, जब करंट I R1 से फ्लो होके जाएगी तो यहाँ पर भी I1 होगा, बट नाउ दिस I1 विल स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, दिस विल बिकम, दिस I विल स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, I1 एंड I2. ये I करंट फ्लो हो रहा था यहाँ पे, दिस इज द I, और ये I will now split into 2 parts, that is I1 and I2, right? अब ये I2 जब R2 से होकर जाएगा तो R3 को भी कितना मिलेगा, I2, यानी कि सेम करंट I2 इज फ्लोइंग थ्रू दिस R2 एंड R3. दैट मीन्स जब सेम करंट फ्लो होता है किन्हीं दो रजिस्टर में से, दैट मीन्स वो रजिस्टर क्या होते हैं, इन सीरीज, और जब करंट को स्प्लिट होना होता है तो वो रजिस्टर कैसे होते हैं, इन पैरेलल. बट हियर यू कैन सी that this I2 is flowing through this I2 is flowing through this R2 and R3. That's why this R2 and R3 are in series, so we can simply add them. Okay, so net resistance will be for R2 and R3 will be R2 plus R3. So you can redraw the diagram like this. This is your battery, this is ammeter, key, current I is flowing, this is 3 ohm, this is I, this is R5, 3 ohm, this is R1, 3 R5, and this is R4, 3 ohm, and since R2 and R3 are in series, so we can write R net for R2 and R3 is R2 plus R3. R2 plus R3 will become 3 plus 3, that is nothing but 6 only. So you can write it as 6 ohm. समझ में आया? 3 और 2 सीरीज में थे, इसलिए 3 और 3 सीरीज में थे, इसलिए हमने इनको सिंपली एडअप किया, 6 ओम आया. अब क्योंकि ये इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है तो हमने इसको वापस इन टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर दिया. देखो ये सीरीज में ही तो है, लाइक दिस टर्मिनल. अगर इसको मैं A बोलूँ, इसको B बोलूँ, तो ये भी A ही है, ये भी B ही है. इसको ऐड करने के बाद वापस वहीं जोड़ना पड़ेगा ना जहाँ ये पहले से थे. तो ये पहले से कहाँ पे थे, A और B के बीच में, तो मैंने इस रजिस्टर को वापस A और B के बीच में जोड़ दिया. नाउ अब ये जो करंट था I, ये किस किस पार्ट में स्प्लिट हो रहा था, I1 एंड I2. तो I1 फ्लोइंग through R4, 3 ohm, and I2 is flowing through this 6 ohm. But you can see from here that this current I is splitting at this point, I1 and I2. Okay, so
as the current is splitting, that means they are in parallel combination. And as per the definition of the parallel combination, the net resistance, if the two resistors are connected in parallel, then the net resistance will be 1 upon R1 plus 1 upon R2. So in this case the net resistance will be 1 upon 3 plus 1 upon 6. So 1 upon R net will be 6, 3 by 6. तो R net will be 2 ohm, राइट. तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना निकल के आ गया, 2 ओम. एज पर द डेफिनेशन ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यही पढ़ा था हम लोगों ने कल, 1 अपॉन आर नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. तो ये तो 1 अपॉन आर नेट आया है ना, हमें तो आर नेट चाहिए. तो आर नेट चाहिए तो उसको कैलकुलेट किया, 2 ओम आ गया. दैट मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कितना है, 2 ओम है. तो अब अगर मैं इसको रिप्लेस करके इसका नेट रेजिस्टेंस रख दूँ तो द सर्किट विल बिकम लाइक दिस. दिस इज 3 और इन दोनों का नेट कितना आया है. अगर ये पॉइंट मैं ए बोलती हूँ, यहाँ पे कितना था 3 ओम, यहाँ पे कितना है 3 ओम, और ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है. ए और बी का नेट जो आपने कैलकुलेट किया है वो कितना है 2 ओम. तो इस 2 को मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है. नाउ यू कैन सी दैट दिस करंट आई इज़ फ्लोइंग लाइक दिस. अब यही करंट आई कभी कहीं स्प्लिट नहीं होगा, यही करंट आई इस 2 ओम के अक्रॉस भी जाएगा और ये सेम करंट आई इस 3 ओम के अक्रॉस भी जाएगा. दैट मीन्स दिस 3 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज फॉर नाउ. दैट मीन्स द नेट रेजिस्टेंस विल बी 3 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8 ओम. सो द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट इज, यही तो पूछा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो नेट रेजिस्टेंस कितना आया है 8 ओम. स्टेप्स समझ में आई. स्टेप समझने के लिए दोबारा से देख लो. पहले आपके पास ये सर्किट था, आपने आई करंट को फ्लो करवाया पॉजिटिव टर्मिनल से. क्यों? क्योंकि करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो आई अगर यहाँ से फ्लो हो रहा था तो आई फ्लो होते होते इस पॉइंट पे पहुँचा. इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट होना पड़ा. 2 पार्ट में स्प्लिट होना पड़ा, दैट मीन्स दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब जो दूसरा करंट कंपोनेंट था, दिस इज I1, दिस इज I2, तो I2 इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस 3 ओम ऑल्सो. तो यानी कि I2 भी R2 से ही फ्लो हो रहा है, के थ्रू फ्लो हो रहा है, और R3 से भी फ्लो हो रहा है. दैट मीन्स R2 एंड R3 आर इन सीरीज. तो हमने इनको सिंपली एडअप कर दिया, 3 प्लस 3 6 हो गया. तो इस 6 को फिर हमने यहाँ पे पुट कर दिया. 3 और 3 लिखने की बजाय हम इनको सिंपली ऐड करके 6 लिख सकते हैं. देन अब सिंस दिस I1 एंड I2 आर स्प्लिटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यानी कि ये पैरेलल में है, तो हमने पैरेलल का थ्योरी यूज़ किया. उसके लिए फिर हमने नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया और उस नेट रेजिस्टेंस को इसको हटा के हमने यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया. अब फिर हमने देखा कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं इस केस में अब सीरीज़ में आ चुके हैं. तो हमने सिंपली सबको ऐड कर दिया और हमारे पास नेट रेजिस्टेंस 8 ओम आ गया. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस पूरे सर्किट का. तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था. यहाँ से करंट आई फ्लो होगा, ये करंट आई फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से भी आई, क्योंकि ये सीरीज़ में ही तो है अभी, तो ये आई फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी आई ही आएगा. नाउ एट दिस पॉइंट आई विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. दिस इज़ I1 एंड दिस इज़ I2. यानी कि ये और ये किस में है, पैरेलल में है, राइट. अब जब ये करंट I1 यहाँ पे जाएगा, ये करंट I1 है, यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगा फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो अब ये देखेगा कि इसको भी 2 पाथ मिल रहे हैं फ्लो होने के लिए, तो ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगा I3 एंड I4 में. तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर दैट द करंट इज़ I2, I4 एंड I3, यानी कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू आउट दिस रजिस्टर. यानी कि ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. सीरीज़ में होती तो सेम करंट फ्लो होती. अभी डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो आई करंट था ये इस पॉइंट पे आके, इसको अगर मैं ए बोल देती हूँ, इफ़ दिस पॉइंट इज़ ए एंड दिस पॉइंट इज़ बी, तो इस पॉइंट ए पर ये करंट स्प्लिट हो रही है. एक तो इस पार्ट में, फिर ये ऊपर गई, फिर अगेन ये स्प्लिट हुई. तो दैट्स वाई दीज आर इन पैरेलल कनेक्शन.
तो इस पैरेलल कनेक्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। थ्योरी क्या कहती है पैरेलल कनेक्शन की? 1/r नेट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो दिस विल बिकम 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1, 2 and 3। तो दिस इज द आर नेट। कैलकुलेट करते हैं इसको। तो आर नेट विल बी 6/11 ओम, राइट। ये कौन सा आर नेट आया है? आर नेट पूरा सर्किट, ये पूरे सर्किट का आर नेट नहीं आया है, ये बस इसका आया है, इसका हमने नेट निकाला है। तो इसको हम आर नेट नहीं बोल के आर नेट डैश भी बोल सकते हैं, राइट। डैश लगा दिया ताकि इससे कंफ्यूज ना हो आप लोग कि हमारा नेट रेजिस्टेंस आया। तो अब हम इस अरेंजमेंट को रिप्लेस करके सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। तो अब मैं इस सर्किट को मॉडिफाई करने जा रही हूँ। ये आपका 2 ओम का रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ था, फिर हमने ये नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो अब इसको मैं 6/12 ओम लिख सकती हूँ। नाउ दिस इज़ 2 ओम। नाउ दीज आर इन सीरीज एंड दिस इज़ द बैटरी, दिस इज़ की battery is of 9 volt, IE current is flowing. So you can see from here, अभी आपका सर्किट किस तरह से दिया हुआ था? R1 and this arrangement and R5 and this voltage of this battery of 9 volt। इस अरेंजमेंट को रिप्लेस किया मैंने, और रिप्लेस करने के बाद इसको रिप्लेस कर दिया 6/11 से। क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो नेट निकल के आया है बाय द हेल्प ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन, दिस इज 6/11 ओम। तो इन तीनों को रिप्लेस करके मैं 6/11 लिख सकती हूँ सिंपली। अब अगर करंट आई इसमें से फ्लो हो रहा है तो यू कैन सी दैट सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द सर्किट, दैट मीन्स दीज रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। तो नेट रेजिस्टेंस अब जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा 2 + 2 + 6/11, दैट मीन्स 4 + 6/11। तो कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा विल बी द आंसर फॉर दिस सर्किट। द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट विल बी 6/11 + 4। कैलकुलेट करना, बताना मुझे कितना आ रहा है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? ऑल्सो फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल ऑफ ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर मीन्स हमको फाइंड आउट करना है कि R1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, R2 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, R3 R4 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है और R5 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है। एट द सेम टाइम हमें पोटेंशियल ड्रॉप भी कैलकुलेट करना है कि R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, R4 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ एंड R5 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट, सी बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 9 वोल्ट, करंट फ्लो हो रहा है आई, राइट, एंड इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आया है? 15/11। तो फ्रॉम द ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, आई हमको कैलकुलेट करना है कि आई कितना है नेट। तो आई विल बी V/R, V इज़ नथिंग बट 9 and R is what? 15/11। so by putting this value 15/11, so we will get 99/50, ठीक है। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या मैं इस 99 को 100 के बराबर मान सकती हूँ? नहीं मान सकती हूँ। आई नो दैट कि 99 इज़ डिफरेंट एंड 100 इज़ डिफरेंट नंबर, पर फिर भी कई बार हमें कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए अप्रोक्सीमेट नंबर देखना पड़ता है। 99/50 को आप सॉल्व करोगे तो कुछ अलग आंसर आएगा, पर अगर मैं 99 को 100 के इक्विवेलेंट मान लेती हूँ, लगभग बराबर, तो 100/50 ईजिली हो जाएगा। दिस इज़ 2 एम्पियर। तो यही है, कभी कभी हमको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपने ईजीनेस के अकॉर्डिंग नंबर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। जैसे 99 जो है वो लगभग 100 के बराबर ही है, ठीक है। तो 99/50 इज इक्वल्स टू 100/50, यानी कि लगभग आपका अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इस 2 ओम के अक्रॉस भी कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। इस 6/11 के अक्रॉस भी कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। और इस 2 ओम के अक्रॉस भी कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर, ठीक है। तो जो आपसे पूछा था कि आल्सो फाइंड द करंट, तो आपने R1 के अक्रॉस तो निकाल ली 2 एम्पियर, R4 के अक्रॉस भी आपने टोटल यहाँ पे बता दिया 2 एम्पियर और इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर। अब आपको बताना है कि इस 2 एम्पियर में से कितना कितना करंट इन सब में गया है, ठीक है। तो फॉर दिस लेट्स कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप। अब क्योंकि 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है,
2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कितना हो जाएगा V1, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस V2, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इज V3. नाउ सिंस सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट दिस सर्किट, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, तो V इक्वल्स टू IR 2 एम्पियर इंटू 2 4, दैट मीन्स 4 वोल्ट. अब यही 2 एम्पियर आगे जाएगा 6/11 के पास, तो V2 विल बी IR2, दैट मीन्स 2 इंटू 6/11, दैट मीन्स 12/11. अब आप कहोगे कि मैम जैसे आपने 99 को 100 माना था, ऐसे ही 12 को भी आप 11 मान लो, तो अप्रोक्सीमेटली 11 कैंसिल हो गया, 1 वोल्ट आएगा. हाँ, कर सकते हो, डजेंट मैटर. तो ये 1 वोल्ट हो जाएगा, राइट. और ये कितना है 2 एम्पियर, तो दिस विल बी 2 इंटू 2 4 वोल्ट. तो यू कैन सी 4 + 4 8, और इसको आप कह रहे हो कि अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर मान लेते हैं. अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर माना, तो 4 + 4 8 8 + 1 9, तो यानी कि 9 वोल्ट का अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज आपका कैलकुलेट हो गया. और यही होना भी चाहिए. जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जितना पोटेंशियल आपने दिया है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम ही होगा, राइट. तो दैट्स हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस. और ऐसे ही आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं किसी रेजिस्टर के अक्रॉस, या नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं पूरे सर्किट के थ्रू, या किसी भी रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये सब डिटरमाइन करते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और फिर हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल AB. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करंट की हेल्प लेंगे कि लेट सपोज I करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. अब आप कहोगे कि मैम आपने ऐसी कोई ऐसे करंट क्यों फ्लो करवा रही हो यहाँ से भी, तो आंसर सेम ही आना है दोनों से, ठीक है. आई विल टेल यू हाउ. यहाँ से कंसिडर करते हैं, I करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट I यहाँ पे जाके स्प्लिट हो जाएगा I1 एंड I2 में, राइट. I1 एंड I2 में, I1 I2 में स्प्लिट हो रहा है, दैट मीन्स दे आर इन पैरेलल. अब यही I1 जो है इस 7 ओम के अक्रॉस भी जाएगा, क्योंकि देखो I1 कोई और दूसरा पाथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स दिस विल फ्लो थ्रू 7 ओम, यानी कि दिस 3 ओम एंड दिस 7 ओम आर इन सीरीज़, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है. तो अब तो हमें ये पता लग गया कि 3 ओम और 7 ओम सीरीज़ में है. सीरीज़ में है तो हम इनको कनेक्ट कर दें लाइक दिस, 3 and 7, 3 + 7 is 10 ओम. तो इसको रिप्लेस करके हम 10 ओम भी लिख सकते हैं. तो 10 ओम लिख दिया, राइट. और ये किससे कनेक्टेड था, दिस पॉइंट, इसको मैं PQ बोल देती हूँ. तो PQ से मैंने कनेक्ट कर दिया, और PQ के पास और कौन सा रजिस्टर था, 10 ओम का भी था, तो ये 10 ओम यहाँ पे भी आ गया. अब ये P से 5 ओम 5 ओम भी आ रहा है, तो ये 5 ओम, ये A हो गया. और इस Q से 5 ओम आ रहा है, तो ये 5 ओम लिख दिया. एंड दिस इज़ पॉइंट B. अब देखो ये I जो था ये I1 और I2 में स्प्लिट हो रहा है ना, इसको 2 पाथ मिल रहे हैं, I1, ये तो P पॉइंट हमने माना था, एक तो ये I1 फ्लो हो रहा है, एक ये I2 फ्लो हो रहा है, यानी कि दिस करंट इज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स मीन्स दे आर इन पैरेलल. तो 10 और 10 को पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू हम ऐड करेंगे, तो 1/10 विल बी R नेट. तो दिस विल बिकम 10, 1 + 1 2/10, दैट विल बिकम 1/R नेट. तो R नेट विल बी 10/2. 10/2 इज नथिंग बट 5 ओम. तो इसको हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं 5 ओम. तो यहाँ पे भी 5 ओम, यहाँ पे भी 5 ओम, यहाँ पर भी 5 ओम का रजिस्टर है, और ये है आपका टर्मिनल A एंड B. अब देखो यहाँ पे करंट सेम अमाउंट का फ्लो हो रहा है, I एंड I, दैट मीन्स दे आर इन सीरीज़. तो यानी कि इसका जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 5 + 5 + 5, दैट इज़ 15 ओम, राइट. तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस. अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से भी लोगे तो भी सेम होगा. कैसे, देखो अगर आप कहते हो कि नहीं यहाँ से नहीं चलना है, हमको यहाँ से देखना है करंट को, तो देखो ये I जो करंट है, अब यहाँ पे भी ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, I1 एंड I2 में, यानी कि दिस एंड दिस आर इन पैरेलल. अब ये I1 करंट अगर जाएगा तो यहाँ से भी ये फ्लो करेगा, क्योंकि इसको कोई और पाथ तो मिल नहीं रहा है, दैट मीन्स दिस एंड दिस आर इन सीरीज़. और वही तो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे. दैट्स हाउ करंट डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है. यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है कि आपके पास 2 टर्मिनल हैं और इसके अक्रॉस आपको टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट. सो थैंक्स फॉर टुडे. दीज आर द एग्जाम्पल्स. प्रैक्टिस करो, बुक्स में हैं क्वेश्चंस, सोल्व अनसोल्व दोनों टाइप के हैं. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इस टॉपिक पे कमांड होगी. और ये टॉपिक आपका सिर्फ 10th में ही नहीं, आने वाली क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में, 12th में, कॉलेजेस में बहुत हेल्प करने वाला है आपकी. सो यस, प्रिपेयर वेल. थैंक यू.